Okay, let's start. Okay, so before going to microservice, right? I think everyone, you have worked in a software project, right? So it's like you started your journey, or you started this programming, right, in a some basic language, right? Core Java, or assume that C language, or anything language, right? After that, you know understood that there is a web version of it, right? So where you can do something on the server, right? You learn this word, right? The server, operating system, right? And all other things, right? Now let's today we'll try to start from the scratch. Okay, before going to microservice, you need to understand these basic topics. You might heard this word, you might heard this is what is this, but let's understand in a layman terminology. It's not like a high level I am saying that okay, this is my thing, this is my thing, but how does it work, right? Okay, so let's these are the things that actually we are going to cover. First is like the bare metal server, VMs, containers, hypervisor, base operating system, ISO image versus operating system image, OS image, actually container image, it will be container image, and the OS image and daemon image. What is the image registry? What is the image creation? We mean what is the image run, right? Everyone, as a if you're working in a software industry, you might have little bit of understanding or little bit of things that how it is work. But let's make it clear, right? Before going to microservice, we need to have a solid understanding. Then you will realize why we need microservice, right? What is the basic purpose? Someone say that what is the fundamentals of microservice? Right, Vivisan? Okay, so let's start. Okay, that what is that? So let's take an example. I am a business owner. I have a website, right? www, or assume that not www, abc.com. Can anyone tell me? And I'm just want to see this in this when someone is typing in the browser www.abc.com, right? I want to show something, right? A single line things. It's like that. Hello world, assume, or here it works. I want to show this string. Okay, nothing the fancy website, just like a simple string I want to see. Can anyone tell me what I need to do, right, from the scratch? What I need to do, how I can do the things? Can anyone tell me, explain me with your understanding? Anyone give it a try? No. I have a server, I have a domain name that is a www.abc.com, right? I want to display when some user is clicking on www.abc.com. I want to display a single page where it will be written here it works, right? Nothing else. How it will work, or what is the what will happen? So I if I type www.abc.com, what will happen after that? Yeah, give it a try now. Whatever it will go wrong, why you were thinking? Just you know tell your understanding so that we can make it very crystal clear in everything, right? Okay, let me give it a try. Okay, so everyone has an understanding that each server will have an IP address. ये तो पता है, right? Yes or no?
Everyone is okay. Each server will have a IP address, right? And server is nothing but a device. Yes, what it will have? It will have a CPU. It will have some memory, right? And in the memory, it will have assume that RAM, right? The drive, that is the permanent memory, and there will be networks. So that what is this network? Networks is the process, or the system component which make this server available to the world, right? Now network assume that there is a one physical card, we call it the NIC card. Okay, when I set up everything, CPU, RAM, drive, and NIC card, here is my server, right? And NIC, each NIC card will have its own IP addresses. So server got the IP addresses. Assume that 1.1.1.1, this is a valid IP address. Yes, yes or no? Hmm, right. तो ये मेरा सर्वर हो गया. This is my server, this is my server, everything is there in the server. Now what I need to assume that I am using one simple HTML or whatever things, right? So HTML server check, HTML page I want to display it, here it works, right? So to render a HTML page, right, we need a web server, right? Web server means what I'm trying to say, not that Tomcat or anything. So we need a web server, that is assume that, right? There are lots of web servers, nginx, you might heard about this term. Apache, HTTPD. Okay, these are the web server. So basically what I'm trying to say, you need to install this Apache HTTPD or nginx in this server. Okay, yes. And inside that HTTPD, there will be some, means how it will create the contact between the server physical drive to this HTTPD and nginx, right? So in the middle layer, basic understanding, we need a something operating system, OS, right? So assume that I'm running a Linux based web, right? So what do you mean? We need a first layer, we need a Linux kernel. Anyone know about kernel? On a high level, this is the actual software which actually connect with the hardware. So when you say that I have a server and I have a assume that a computer, it's a computer, right? So first layer of software is the Linux kernel, right? Kernel, the work functionality of the kernel is to communicate with that hardware, okay? And whatever the other application want to do, they needs to connect with that kernel, okay? So first is like base OS, or as in the first layer of operating system will be Linux kernel. After that, we might have a you know good operating system which is have lots of functionality and thread management, everything, right? So if I go in a sense like the Linux based wrapper or operating system, CentOS is a good option. Okay, you might heard about the CentOS. ठीक है? Yes or no? CentOS का नाम किसी ने सुना नहीं? विंडोज सर्वर, आईएस सर्वर, एप्पल मैक का सर्वर होता है, सिमिलर टू, हाँ, सेंट्रोइड सर्वर. सो व्हाट आई वी हैव, फर्स्ट लेवल वी हैव द डिवाइस, वी हैव ए सर्वर, फिजिकल डिवाइस. उसके बाद हमने इंस्टॉल किया क्या, वी व्हाट यू इंस्टॉल, वी इंस्टॉल द लिनक्स कर्नल. उसके ऊपर हमने इंस्टॉल किया सेंटोस, उसके ऊपर हमने डाला एच टी टी पी डी, राइट? नाउ माई दिस बॉक्स इज रेडी. इफ आई मेक दिस बॉक्स, right, sorry, this box is ready. Okay, let me draw something. So this box is ready. What will have in the box?
वी हैव इन द बॉक्स फर्स्ट bare metal सर्वर, उसके ऊपर है ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके above that we have CentOS, above that we have Apache HTTPD, and inside that HTTPD we have our web page. Okay, not too much thing. Okay, so that means what I'm trying to say, if instead of the server means in front of the server someone is typing, so in an HTTPD works on a default port 80, so if someone type 80, okay, in this port it will give whatever I am trying to write. So suppose assume that HTTPD, the index.html I am just writing here, it works, so it will give me the response of here it works. Okay, okay, my inventory system, or the server thing is done. Okay, now what I need to do, I need to host it to certain places, right? The first thing is like you need to buy this domain, right? Because wabc.com, right, is a just like a domain name. Okay, so there are lots of company which provides you the domain like GoDaddy, the basic the thing, right? Basic company you can think of. So you are buying that domain. So I have the www.abc.com, this domain I have. Okay, now next thing what I need to do, I need to do a connection between these two, right? 111.80 and abc.com, I buy the domain, okay, that is fine, but I need to connect these two. Yes or no? In a generic way, what is that thing where I need to do? So there is a DNS server, domain name server. Okay, in the DNS server, right, I need to give that this is my domain name .com. It should route all the traffic to 1.1.1.80. Okay, this is the whole point. Okay, any question? So what you need, first we need a basic server, then we need to implement in that server the all the hardware things. Actually server will have the hardware, then we need to implement all the OS, base OS, that is the Linux kernel. After that we need to use the CentOS. After that we need to deploy something the server, right? Okay, and after that if it is working, but we need to map a domain to that IP address. Okay, then it is working. ठीक है, क्लियर है? बोलो. हम्म. अब आप कैसे 4 CPU जो भी चाहिए आपको, but what you were saying that according to your system, you are buying some server every time. You are buying some server, okay? From where? If these bars means no. From GoDaddy you can buy the server basically. GoDaddy is the domain name. Okay, you are buying the domain name. But for server, either you have your own setup, or you can rent someone, or you can have another function. We will come that into detail into later. So you can, from this understanding you need to reach that how, assume that your company Paycraft is using the server, you might heard about that we are using cloud. What is that? What the what is the thing is happening, how we are reaching from cloud? So that is the basic understanding we want to discuss first. Okay, so just hold on your question, I'll answer you in later okay. ठीक है, ये समझ में आया? एवरीथिंग इज गुड, ईच एंड एवरी पार्ट. ठीक है, थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गया? जिसको थोड़ा कंफ्यूजन था कैसे होता है क्या होता है, सो कुछ भी चीज़ अगर गो टू एनी इंटरव्यू, लॉट्स ऑफ इंटरव्यू, यू नो earlier days, right, lots of things being asked that if you type something in the google.com, how this is happening,
how Google is trying to do whatever you are trying to do, right? When you type anything domain name, how it is actually working in the back end or whatever the functionality. ठीक है, क्लियर है? चलो अभी नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं. सर्वर तो आ गया भाई. So now next thing what I'm trying to do, that assume that I want to host it, right? तो मेरा छोटा सा कंपनी है, मेरा एक छोटा सा वेबसाइट है, सब ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, राइट? तो मैं क्या करूँगा, मैंने एक सर्वर खरीद लिया. ओके, अब नहीं रहेगा. ओके, मैंने एक सर्वर खरीद लिया. ठीक है, ये सर्वर में समझ लो 4 CPU है. ठीक है, ओके, 256 GB ड्राइव है, 8 GB रैम है, एंड ऑल द NIC कार्ड आई हैव एवरीथिंग, राइट? ये सर्वर में मेरा पास एक ही सर्वर है, राइट? एक सर्वर में मैं कितना ऑपरेटिंग सिस्टम डाल सकता हूँ? सिंपल, एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम डाल सकते, राइट? अभी समझ लो, कल किसी ने तुमको अगर बोला भाई तू एक काम कर, तेरा ऑर्गेनाइजेशन में जो abc.com है ना, ये जो लिनक्स है, ये ठीक है, ये फ्री है, सब कुछ है, बट एक दूसरा एक सर्वर आया है बहुत मार्केट में, मतलब बहुत ही फाड़ू है, उसमें बहुत सारी चीज़ और करता है, एंड यू वांट टू एक्सपांड योर बिजनेस. तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है उसके लिए आपको IIS सर्वर चाहिए, समझ लो ये भी दूसरा कोई सर्वर चाहिए. तो क्या करोगे, या तो आपको नया सर्वर खरीदना पड़ेगा, ठीक है, और या आपको पुराना को भाई ये नहीं चलेगा, अभी नया वाला कुछ करते हैं, राइट? ये सुन लो, डू यू थिंक इट इज इजी? नो. For an organization, big organization, it is not easy. Why? Let me tell you why it is not easy. Because if you are using 199% utilization of your server is doing, then it is good to go for a new server. But if assume that a 4 CPU, 256 GB drive, 8 GB RAM, one NIC card or two NIC card, assume, okay, if you are not utilizing all these resources, you are utilizing only 5% of it, right? Rest 95% is your waste of money, because you are not able to utilize the whole capacity of the server. You need another system, another server, then another, right? Surplus memory, surplus resource will be there. Okay, है ना? So what was market is, everyone is facing these challenges in I think 30 or 40 years ago, when the distributed system is coming into picture, that okay, what we will do, right? So, and also there are few things like one thing is that multiple operating system is not allowed. Also assume that in the same operating system you want to install two program, okay, two software, not single software. Apache HTTPD in the single software you can use, right? In a single Tomcat, assume that a single server you can install Tomcat, you can install database also, right? Easy in your language, right? Yes, both is having their base, they support both run on the Linux server, okay. But assume that they both have a common library. Common library, assume that you can think of your uh, what is the in your programming language, assume that there is a jar file which is being used, right, in both the application. But one application is compatible with one version 1.1.1, but another software, another application what you are trying to host it, it needs that 1.1.2, okay.
And in the core OS level or CentOS level, whenever you are designing this, you can have only one dependency, right? You can't have multiple dependency of the means you can't have a same dependency with multiple version, right? That's also a problem. Okay, so somehow actually there are two challenges. First challenge is like utilization challenges, which is the much more thing which is directly related to your cost to your company. And another challenges was that you are not able to segregate the process, right? There is a dependency factor is coming into picture. If you change their way, the other way will change. Okay, then people thought about it, then the new concept came into picture, that is the VM, virtual machines. What is the virtual machines? Can anyone tell me? What is virtual machine? Server available on the cloud. ये भूल जाओ. Let's not talk into that on-premise cloud. It will make it very complex. Assume that a bare metal you understood, right? Bare metal server, how it works. Yes, everyone understood bare metal how it works. No. Okay, bare metal is okay. Sorry. Bare metal. What does it mean by bare metal? Bare metal means physical server, one operating system in a one server. That is the bare metal, na? You are buying one server every time. That is the bare metal. Bare metal doesn't mean anything else. Raw metal. It's like bare metal. Okay. So every new instance of your server is giving you a new operating system, right? So this is the bare metal we call. Okay. Everyone is clear how this whatever I described till now, that is the bare metal. Okay. Everyone is good. ठीक है. अभी जाते हैं नेक्स्ट लेवल पे. नेक्स्ट लेवल पे इन्वेंशन हुआ कि अच्छा एक काम करते हैं यार, इसको ना कुछ तो करते हैं जिससे हम एटलीस्ट जितना भी हमारा रिसोर्स है उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, राइट? So people was thinking that what to do. So they first introduce one actually software piece, right? Whose name is hypervisor. Okay, what hypervisor will do? Okay. नीचे क्यों नहीं जा रहा है? So this is my one thing, and okay, so I have four CPU, right? Some 8 GB RAM, right? NIC card. So we created one application, that is the hypervisor. What hypervisor will do? Hypervisor basic function is like virtualize the resource. What do you mean? Virtualize the resource mean it will work in the kernel. So here I have the operating system kernel. Okay, OS kernel. ठीक है. Here I have the OS kernel. ये जो Linux kernel, OS kernel जो भी है, right? And hypervisor, what it will do? It will tell you, okay, you can do one thing. So you can have a application, or you can have your application assume that I'll use this, utilize this resource, and virtually I can create how many machine or how many machine you want, right? What do you mean by that? It means that it is a virtual machine. It is not a physical machine, but
you can think of it is completely isolated and it is completely divided. Okay, that means what hypervisor is doing, hypervisor will divide the all resource into multiple, you know, virtual resources. So here I have one, here I have two. These are the VMs. Now VM, what will have VM will have their virtualized version of it. What will happen, so we call those, you know, vCPU, virtual CPU. Okay, vCPU, all the things, VRAM, VNIC card, everything will be there. Okay, so this VM doesn't know that this VM exists, and this VM doesn't know the other way, right? And there is no sharing will happen in this two VM, right? Those will be treated as a separate server, and VM will not directly, you know, go to the OS kernel to talk, right? VM will communicate to the hypervisor. Hypervisor is the intermediator to call with the bare metal server. Okay, that is the kernel program. Okay, here one problem is being solved. What is the problem? That if you have two Linux based system, okay, two Linux based system, one is assume that Ubuntu and another is CentOS, right? Then your problem is being solved eventually. Okay, your problem is being solved because what is happening, that your operating system, your base operating system, right, is separated from other one. Okay, now let's, you know, give you much more things what I'm trying to say more here. When I say operating system, what it contains, can anyone tell me what it have? नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम में सीपीयू रैम रहेगा. थिंक अबाउट इट बिफोर यू सेइंग. बोलो. Simple. Kernel, dependency, right? Library and program. ठीक है. एक्चुअली यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, देन इट विल मेक यू सिंपल. एक्चुअली यहाँ पे कर्नल नहीं रहेगा. एवरी ऑपरेटिंग सिस्टम विल हैव इज कर्नल. कर्नल मतलब क्या? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द, यू नो, file, the layer of it. Kernel means what? Who will talk to the hardware? That is the kernel programming. What is the dependency? Okay, now I have a library. What library? So if you install anything in CentOS or Windows in your software, in your hardware, what you will get? You will get a basic platform, right, to, you know, continue your work. It has some utility program like my MS Word or whatever the things, right? So what it does, so it is the, that is the application layer of your operating system, right? So to do that, what are the things it has? It has the kernel, all the dependency library, right, and some customized program, right? Yes, and some internal process. Yes or no? It's a simple understanding what is inside my OS will have, right? Now what I'm saying, that this programming, right, this programming or kernel, whatever the dependency library program process, right, this thing will have in the VM, inside that VM. Okay, and it will talk to the hypervisor. Hypervisor will communicate that to the actual hardware, right? So hypervisor is a manager, right? Initially there is no hypervisor, you are directly using your kernel program to talk to the actually the, you know, the hardware. Now here the kernel came into picture, right?
kernel came into picture, and actually, sorry, hypervisor came into picture. Hypervisor is there to communicate between my VM to the bare metal server. Okay, I know it is little bit difficult to mug up, but guys, please just give me some time. I'll make you understand why I am explaining this. Okay, because this is the basic thing you need to understand before understanding the cloud or anything. Okay, so how the things works, right? So VM is like the virtualized version of the physical machine. Okay, virtualized mean what you'll have, one virtualized machine means one, if you can think it is not a physical machine, so it is a base operating system layer, right? So each VM will have its own kernel, it will have all the dependency library, it will have their own processes, and it will have their own program. ठीक है, ये चीज क्लियर है? क्लियर है एवरीवन? क्लियर? ठीक है, अभी इस पे भी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है मैं बताता हूँ। प्रॉब्लम यह है कि मल्टीपल कर्नल इज ट्राइंग टू use the same machine. So what is the problem ये है, मैं let me tell you something, that is that VM is a small system, but VM के अंदर भी प्रॉब्लम है। VM में आप एक OS डालोगे, राइट? अब अगर आपका एप्लीकेशन मल्टी, एक ही VM में मल्टीपल एप्लीकेशन डालोगे तो ओवरलोड हो जाएगा, राइट? एंड VM कैन नॉट बी ऑल्सो ओवर यूटिलाइज, बिकॉज VM में भी मैपिंग होता है, राइट? कि आप 256 जो भी GB है, मेमोरी है, 256 जो भी आपका हार्ड ड्राइव है या जो भी रैम है, जो भी CPU है, उसको वर्चुअलाइज्ड वर्जन होता है VM। मतलब जैसे टू टू, सो इसको मैंने तोड़ दिया, तो दो डिवाइड कर दिया, 2 भी CPU, 4 GB रैम, 250, इसको थोड़ा तोड़ दिया कि 64 GB मेमोरी लेके एक मैंने वर्चुअल मशीन बनाया, राइट? यू आर डिफाइनिंग दैट। सो नाउ कमिंग टू योर पॉइंट, रिविजन। The thing is, whenever you are creating the VM, that time you need to call the hypervisor that how much requirement do you have, right? Then that will give you the, actually, that will allocate and create your VM, okay, from this bare metal server. Okay, you need to call to hypervisor how much memory, how much configuration you need, but still it is not highly specialized or super utilized the thing, because inside the VM there might be same problem, right? So you will break any VM, because the thing is, the main problem what we are utilizing, that every operating system inside that VM also, right, we are using separate kernel. What do you mean by separate kernel? Kernel is very high heavyweight application, right? And it is like that, it is having its own problem, right? What is the problem? Problem means that inside the VM also you can implement two operating system, right? Suppose you just need to run a simple process, right? So for that you are coming with your own kernel, right? So then the next level things came into picture, that is the containers. So container ने क्या किया, ये बोला कि okay, let's do one thing, right? Instead of this VM CPU और जो भी VM है, I'll use this as a container. What container does? कंटेनर बोला कि प्रोसेस को हम आइसोलेट करते हैं, लेट्स डिवाइड द प्रोसेस एंड आई विल यूज द, जो भी बेस कर्नल है उसको ही मैं यूज करूंगा। ओके, आई विल नॉट कम विथ ए माई ओन कर्नल। ओके, सो आई विल यूज द दिस बेयर मेटल का जो कर्नल है उसी का हम यूज करेंगे, राइट? बट आई विल only, in my operating system image, I will only have my dependency library, program and process. These are the thing. Okay, so इससे इससे चीज़ और लाइट वेट हो गया, एंड द सेपरेशन बिटवीन ईच एंड एवरीथिंग इज जस्ट लाइक ए process level separation, not a virtual machine level separation. Okay, so the small part of this process, or small part of pocket which is running right above the hypervisor, and it is using the same bare metal kernel, that is we call the container. Okay, so assume that you are running something. Assume, what is your comfortable, can anyone tell me what is your comfortable thing? Your comfortable thing is, assume that a Java program,
क्या बोलते हो? ये जावा प्रोग्राम, तो जावा प्रोग्राम में देखते हैं क्या क्या चीज़ होता है। तो समझ लो कि तुम्हारे पास एक जावा प्रोग्राम है। जावा प्रोग्राम में क्या रहता है? व्हाट इज़ द बेसिक थिंग? बेसिक यू नीड सम core OS something type of thing. So assume that you have a box which is having the Linux, right? Linux you have with OS, Linux का जो OS है वो है, ठीक है। अभी मैं इसमें क्या डालने वाला हूँ, मैं एक काम कर सकता हूँ, राइट? आई एम जस्ट हैविंग ए लिनक्स OS. I'll create a container and I'll deploy into this OS. Now my container will have everything. What do you mean by everything? Let's first understand what is the first requirement for your Java program. ठीक है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या चाहिए? एक है लिनक्स ओएस, वो तो है। दूसरे उसके ऊपर समझ लो कि आपको कुछ ये चाहिए, मतलब इट्स लाइक दैट यू नीड सम सर्वर लाइक सेंटोस। उसके बाद आपको क्या चाहिए? जेडीके, ओपन जेडीके, यस और नो? समटाइम जेडीके कम्स विद द कॉम्बिनेशन ऑफ द सेंटोस एंड इट्स जावा लाइब्रेरी। जेडीके चाहिए, चाहिए ना नहीं चाहिए? ठीक है, उसके बाद आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम, ठीक है। पहले कैसा था, पहले वीएम कैसा था मैं बताता हूँ। पहले वीएम कैसा था, ठीक है, लिनक्स ओएस फाइन प्लस सेंटोस प्लस जेडीके, ये था आपका वीएम पहले। ये तीनों मिला के वीएम बैठा था। आप क्या करते थे? एप्लीकेशन प्रोग्राम को लेके जाते थे, उसी वीएम में जाके इंस्टॉल करते थे। यस, यू विल जस्ट रन दिस, यू विल कॉपी दैट फाइल इनटू दैट सर्वर एंड यू विल टाइप जावा हाइफन जार, दिस इज माय ऐप डॉट जार। जाना पहचाना लग रहा है ये, ठीक है? ये सुन लो, अभी आप क्या कर रहे हो? जस्ट टेक दिस थिंग वेरी केयरफुली। आपके पास लिनक्स ओएस है, आप क्या कर रहे हो? आप सेंटोस को ले रहे हो, राइट? जेडीके को ले रहे हो, एप्लीकेशन प्रोग्राम को ले रहे हो। ये तीनों को जाके, ये तीनों जो है, जो तीनों मिला के जो भी एक कंबाइंड चीज़ बनता है, राइट, इसको हम बोलते हैं कंटेनर इमेज, ठीक है। ये कंटेनर इमेज को आप जाके एक बेयर मेटल में डिप्लॉय करते हो। यहाँ से सॉल्यूशन क्या हुआ? सॉल्यूशन ये हुआ कि समझ लो आपने जो एनवायरनमेंट में जावा का एप्लीकेशन बनाया, उसको सेंटोस या जेडीके का जो भी लाइब्रेरी चाहिए था, वो लाइब्रेरी अगर तुम्हारा सर्वर में नहीं होता तो फट जाता। sometime you get the issue that you are running your application in JDK 11, you are tested in JDK, you wrote the application JDK 11 but तुम्हारा सर्वर में JDK 8 है। तो तुम जब JDK 11 का एप्लीकेशन लेके सर्वर के पास जाओगे, जो भी फंक्शनलिटी वो नहीं चलेगा। ये सुन लो, यस। बट यहाँ पे प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुआ? मैं बोला कि ओके लेट्स डू वन थिंग, आई विल फर्स्ट चूज माई ओन सेंटोस वर्सन, आई विल फर्स्ट चूज माई ओन जेडीके वर्सन एंड आई विल यूटिलाइज माई एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड आई विल बेक दिस थिंग। इन तीनों को मैं बेक करके, ठीक है, बेक करके मैं एकदम जाके दे दूंगा तुमको, ठीक है। तुम इस कंटेनर इमेज को जाके डिप्लॉय कर दो, तो ये सीधा लिनक्स के साथ बात करेगा। ये जो सेंटोस है इसके अंदर कर्नल नहीं है, ये जो जेडीके तो नहीं होगा, बट सेंटोस में भी कर्नल नहीं है, राइट। आई विल यूज द लिनक्स ओएस कर्नल, आई ओनली हैव द सॉफ्टवेयर पार्ट, हार्डवेयर के साथ किसी भी कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है। आई ओनली हैव द सॉफ्टवेयर पार्ट ऑफ सेंटोस, जेडीके पार्ट एंड द एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग पार्ट, ठीक है। दिस इज द कंटेनर इमेज, okay, we call this, we are baking this thing, we are using the container image. So instead of deploying the jar file, we are going to deploy something that is the image, we call it as a container image, okay, ठीक है। Definitely I'll go with a example, obviously don't think that it is the theoretical and मैं आज सुबह मेरा दिमाग खराब हो गया कुछ भी बके जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है, right? So we have a solid example. So what is the benefit you can see here? The first benefit is like आपने जिस एनवायरनमेंट में टेस्ट किया था, सेम एनवायरनमेंट में आप साथ में लेके जा रहे हो। यस, आपको मैक्सिमम एरिया में सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम जो था, इसको हम बोलते थे, क्या बोलते थे? इंफ्रास्ट्रक्चर ड्रिफ्ट, और इसको हम बोलते थे, दूसरा एक नाम भी है आई थिंक, कॉन्फ़िगरेशन ड्रिफ्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर ड्रिफ्ट। व्हाट डू यू मीन बाय दैट?
ये मीन बाय दैट, ये एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में एक मिथ वर्ड था कि ये तो मेरा लोकल में चल रहा है, उधर नहीं चल रहा तो हम क्या करें. दिस इज द मेन प्रॉब्लम. ओके. तुम्हारा लोकल सिस्टम का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन सर्वर में नहीं भी हो सकता है. Then what is your problem? That is the main problem. The environment, the dependency is changing or it is not same. So there is a drift can happen. आपका प्रोडक्शन में जाओगे चलेगा कि नहीं कोई भरोसा नहीं, वहाँ पे क्या डिपेंडेंसी आप डाले हो, किसने क्या डिपेंडेंसी डाले हैं, बिकॉज द पर्सन वी डेवलपर एज अ डेवलपर you will not have the access to the production. Only the dedicated person who is working in the admin or the network admin, they will have the dedicated application, access to that production, right? They can, you need to tell them that ये dependency डालो, if they did something wrong then हो गया तुम्हारा, everything will be problematic. And this is also time taking things. Okay, fine. So अभी हम एक एक चीज, इफ यू तो पहले क्या था, पहले कि ये सेंटोस का मैं जो बोल रहा था, वीएम में जब सेंटोस इंस्टॉल करते थे, ये पहले क्या था, राइट? पहला वाला जो था जिसके साथ कर्नेल एंड ऑल अदर थिंग्स, राइट, विच इज बिकॉज ये एप्लीकेशन प्रोग्राम के लिए पहले सेंटोस एक, मतलब समझ लो कि सेंटोस एक जेनरिक जैसा था. सेंटोस में बहुत कुछ कर सकते हो आप, बट यहाँ पे हमको सिर्फ एक जावा प्रोग्राम रन करना है, उसके लिए जितना चाहिए उतना ही डालो ना, हमको पूरा सेंटोस नहीं चाहिए, राइट? So initially what we have that we call it the ISO image CentOS. ठीक है, ISO image मतलब कि आप ISO image पूरा डाल रहे हो, उसी को जाके आप सिस्टम में इंस्टॉल कर रहे हो. But for these containers you don't need that ISO image, you need container image. Okay. Okay, किसी को कुछ कंप्लीट मतलब प्रॉब्लम आ रहा है, गो टू द CentOS. आपका सिस्टम में CentOS इंस्टॉल करना, आप क्या करोगे? CentOS लिनक्स में गया, ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बोल रहे थे. CentOS लिनक्स आपको कंटेनर वाला इमेज चाहिए कि नॉर्मल जो होता है ये 84, इट इज़ द, अरे डाउनलोड स्टार्ट ना हो जाए, नहीं नहीं हुआ, चल ठीक है. सो दो, ये देखो क्या बोलता है, फॉलोइंग मिरर्स इन योर रीजन शुड हैव द ISO इमेजेस अवेलेबल, दिस ऑल आर द ISO इमेज. ठीक है, आप कोई भी ओपन सिस्टम में आप ये ISO इमेज चाहिए, और ये ISO इमेज ऐसा है कि आपका सिस्टम का पूरा जो लाइब्रेरीज है, जो प्रोग्राम है, जो भी आपको चाहिए विथ ऑल द यूटिलिटी इट विल कम, राइट? बट assume that what I was trying, I need to run a simple Java program, हमको इतना कुछ चाहिए क्या? नहीं चाहिए, right? So I don't need the ISO image of a CentOS, I need the container image of a CentOS where the basic layer is there, only the basic dependency which is only required for this container image. ठीक है, so every company whatever their product is, right? So based on that, so in this world assume that how many types of program you have downloaded. You have downloaded the utility program, you have downloaded the operating system, right? Operating system like CentOS ISO image I told you. So if you just download it, after that if you keep it in a pen drive, and if you can reboot your system, and during the rebooting if you choose this as a program, then it will work, right? It will deploy your CentOS in your local machine. Okay, so this is the thing of which actually, so this can come with a container version of it, right? So these all other, this operating system level image, we will call this as OS container image. ठीक है, अभी समझ लो आपके पास ऐसा है कि माई एसक्यूएल या पोस्टग्रेज, राइट? ये भी एक सॉफ्टवेयर है, राइट? पोस्टग्रेज माई एसक्यूएल लेते हैं, माई एसक्यूएल कैसे लिखा है? माई एसक्यूएल के अंदर क्या होता है? एनीवन कैन एक्सप्लेन मी व्हाट इज इनसाइड माई एसक्यूएल? CentOS, CentOS, right? And after that MySQL application program, राइट? उसका जो भी लाइब्रेरीज है, जो भी डिपेंडेंसी है, वो सब चीज़ है, राइट? सो MySQL का एक, अगर अगर आपका लोकल सिस्टम में
अगर माई एसक्यूएल डाउनलोड करते हैं आपका क्या आता है, आपका पूरा इमेज आता है, एक आईएसओ इमेज आता है, कितना जीबी का कितना एमबी का इमेज आता है, आप उसको यूज़ करते हो, फिर टर्मिनल से एक्सेस करते हो. बट एवरी एप्लीकेशन इज ऑल्सो यू नो publishing their container image. Okay, so we call those application oriented container image are the daemon container image. ठीक है. Basically what I'm trying to say on a layman word, layman technology, I think this is, if it is going too much difficult, just let me know, I'll make it very simple. आपका सिस्टम में जब भी आप कुछ सॉफ्टवेयर, या तो आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, कोई भी सॉफ्टवेयर अगर इंस्टॉल करते हो, दिस सॉफ्टवेयर कैन बी टू टाइप. वन इज ओएस बेस्ड सॉफ्टवेयर, एक होता है यूटिलिटी बेस्ड सॉफ्टवेयर. ओएस बेस्ड सॉफ्टवेयर लाइक सेंटोस, उबंटू, ये सब कर रहे हो. यूटिलिटी बेस्ड सॉफ्टवेयर इज लाइक डेटाबेस आप इंस्टॉल कर रहे हो, आप दूसरा कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हो. तो उसके लिए आपको क्या मिलता है, आपको दो एक इमेज मिलता था पहले, आपको एक आईएसओ इमेज मिलता था, आपका मेमोरी में एक जगह ले लेता था, वो बहुत बड़ा जगह ले लेता था, क्योंकि उसके ऊपर आप बहुत कुछ करने वाले हो, आप सिर्फ आईएसओ इमेज डाउनलोड कर रहे हो. अभी एवरी कंपनी इज रिलीजिंग along with that ISO image, they are also releasing their container image, right? And for a specific purpose, what is your need? ठीक है, I'll not use the everything, right? But I'll just take the basic of it, right? And I will create the image, lightweight image, and you can use that in your containerized application or containerized platform. ठीक है. Yes, everyone, I'll just stop here for few minutes, right? Just let me know what is your thought. Are you agree with me what I'm saying, right? This is the what are the two types of image and why this container thing came. First of all, you need to understand this part, right? If you understood this part, then everything will be fine. ये part समझ में आ गया कि आपको क्या क्या चाहिए. सॉरी, ये part मतलब एक VM है तो VM के अंदर आपको क्या क्या रखना चाहिए, राइट? VM है तो उसके अंदर लिनक्स ओएस होगा, सेंटोस होगा, जेडी को आप बाहर से सिर्फ जार फाइल लेके उधर डाल रहे हो. कंटेनर में आप क्या बोल रहे हो कि लिनक्स ओएस है, बाकी ये सब चीज़ मेरा एक कंटेनर इमेज में रहेगा, मैं सिर्फ कंटेनर इमेज को डालूंगा जार फाइल में. ये दोनों चीज़ क्लियर है. इफ दिस टू आर क्लियर देन यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग, राइट? क्लियर है. तो अगर एक कंटेनर इमेज चाहिए तो यू नीड द इमेज वर्जन ऑफ सेंटोस, यू नीड द इमेज वर्जन ऑफ जेडीके, यू नीड द इमेज वर्जन ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम. यस, इसमें आप तो एक बड़ा प्रोग्राम आईएसओ इमेज वाला नहीं घुसा सकते, राइट? क्योंकि इसका पर्पस छोटा ही है. ओके, so every application needs their image, we call those as a container image. Container image can be two types, one can be the OS based, another will be the daemon based. Daemon based मतलब यूटिलिटी प्रोग्राम के लिए जो यूज़ होता है. ठीक है. अभी मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दिखाता हूँ, राइट? सो इट विल बी लिटिल बिट. Any question before we go ahead? Any question? No question. Everyone understood everything? ठीक है. लेट मी गो द नेक्स्ट लेवल. नेक्स्ट लेवल क्या है? नेक्स्ट लेवल ऐसा है कि आपने तो बोल दी इमेज, बट इमेज कहाँ रहेगा, मैं मतलब क्या करूँगा. अभी अभी आप आपका सिस्टम में assume that in your organization how do you manage everything, how do you manage everything? Every organization has its own way. I'll take an example of Paycraft or any other organization, right? How we do the things. मैं बताता हूँ. समझ लो कि आपके पास बेसिकली सारे जावा बेस्ड एप्लीकेशन है. तो जावा बेस्ड एप्लीकेशन है मतलब क्या है, तो आपके लिए एक गिटहब या गिटलैब ऐसा एक रिपोजिटरी होगा. यस, जहाँ पे आप सारे कोड रखोगे, है ना? फिर आप क्या करोगे, गिटहब से आप जब आपके पास एक सर्वर होगा जहाँ पे एप्लीकेशन सर्वर है, एप्लीकेशन सर्वर में आप कोड को डालोगे. यस, गिटलैब से कोड को कैसे डालोगे, आप पहले या तो मैनुअली या सम टूल यूज़ करके आप गिटलैब का जो कोड रेपो है उसको आप कंपाइल करके एक जार बनाओगे. यस, उस जार फाइल को आप एप्लीकेशन सर्वर में डाल दोगे, है ना? यस. बट कंटेनर इमेज में थोड़ा चीज़ अलग है ना. क्या अलग है?
ये जार से काम चलेगा? नहीं चलेगा, राइट? यू नीड सम कंटेनर इमेज। ये सुन लो, कैसे बनाओगे कंटेनर इमेज? पहली बात, बनाना छोड़ो, बना तो मैं दूंगा, एक्स वाई जेड बनाऊंगा, रखूंगा किधर? मैं गिटलैब में रख सकता हूँ, गिटहब में रख सकता हूँ? नो, यू कांट। ओके, so you need something that is the image registry. Okay, what do you mean by image registry? इमेज को रखने के लिए आपको एक दूसरा टाइप ऑफ रजिस्ट्री चाहिए, नॉट द कोड रजिस्ट्री। कोड विल बी देयर, गिटलैब में कोड रखो, बट कोड से आप क्या करोगे? इमेज रजिस्ट्री में आप क्या रखोगे? आप उसका इमेज रखोगे, ठीक है? एन एप्लीकेशन सर्वर, व्हाट वी आर सेइंग, दिस एप्लीकेशन सर्वर एज्यूम दैट दिस इज द बेयर, मतलब आपका पास लिनक्स लेयर है सिंपल, ठीक है? और वहाँ पे कुछ टूल होगा, जिस टूल से आप ये इमेज रजिस्ट्री से इमेज को उठा के, राइट, ये सर्वर में आप डाल सकते हो। when I'm taking this image registry, what do you mean, what do we have the image inside that image? Everything, क्या क्या है? एक OS लेवल, बेस OS जो हम बोल रहे हैं, all the dependency, all the libraries, everything is there in that image. So आपको एप्लीकेशन सर्वर में कोई प्री रिक्विजिट नहीं है, आप इसका इमेज सिर्फ उठाओ, इधर डाल दो, आपका एप्लीकेशन इज अप। ओके, सो वी नीड ए इमेज रजिस्ट्री। अच्छा, एक बात बताओ, आप बहुत सारे कोड तो करते हो, आप एक एक पब्लिक गिट रजिस्ट्री का नाम बोल सकते हो? कोई गिटहब, राइट? गिटहब इज ए पब्लिक, राइट? सो डू यू हैव समथिंग लाइक गिटहब फॉर द इमेज रजिस्ट्री? यस, डॉकर हब, dockerhub.io, और एक है qa.io, ऐसे बहुत सारे हैं। In your organization you can also use or you can also define your own registry, ठीक है? तो अभी हमारा हमारा जो पैराडाइम है, जो भी हमने आपने जिस जिस ऑर्गेनाइजेशन में जैसे भी काम किया है, उसमें पैराडाइम पूरा चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ? अभी पहले क्या होता था कि मेरे पास जार होता था, मेरा सेंटोस सब कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल है, आप क्या कर रहे हो? आप जाके जार को रन कर रहे हो। अभी जार से काम नहीं चलेगा, अभी क्या चाहिए? यू नीड द कंटेनर इमेज, you need to save this image to some registry and it might be anywhere in the सर्वर के पास सिर्फ वो टूल होना चाहिए वो इमेज रजिस्ट्री से चीज को पुल करने के लिए, and after the pulling that image it can run that image. Okay, this is very lightweight, very the things. Okay, I think this is little bit थोड़ा बहुत समझ में आया, बट थोड़ा भी अभी तो ये बिलीव नहीं हो रहा है, राइट? ऐसा होता है क्या? ऐसा कुछ फीलिंग्स है किसी का? होता है, ठीक है, एक करके देखते हैं। ओके, लेट्स डू इट। एग्री एवरीवन? अंडरस्टूड? ठीक है, I'll just give you a glimpse, right? But this is we are going to learn in next session or next module, right? So that tool who is going to create the image, who is going to help us to create the image, who is going to actually communicate with this Docker hub, right? That tool is Docker, ठीक है? So Docker मेरा सिस्टम में इंस्टॉल है। ओके, so let's do one thing, let's create a new application, ठीक है? न्यू प्रोजेक्ट। मेरा स्क्रीन विजिबल है, राइट? एवरीवन इज एबल टू सी, ठीक है? इसका नाम देते हैं जावा डीसी डॉकर, समझ लो, जस्ट गिव नेम, सॉरी, इनवैलिड पैकेज। हमको सिर्फ वेब चाहिए, एक हम एक सिंपल एंड पॉइंट होस्ट करेंगे जिसमें ये लिखेंगे कि हेलो फ्रॉम जावा डीसी, ठीक है?
have some patience, it will take some time. Okay. But reduce the indexing time and sequence. Okay, so here I'll just add one endpoint, only one endpoint, nothing much, nothing much. Sorry, public, right? I'll just response entity, and I'll take this as a string, right? Okay, return response entity hello from Java DC. http status dot ok. What I'll do, I'll write it REST controller इसी class में कर देते. You can do it in a separate class, but for the simplicity I can do it. Get mapping, what I'll give, API v1 resource. अच्छा API v1 ठीक है, यही रहने देते हैं, ठीक है, ये रहने देते हैं API v1. अभी इसको मैं रन करूंगा तो what is actually running in my local, in my system, I have assumed that physical server, right? And I have my OpenJDK installed in my local, so if you run it, it will run it, right? It will run in my local system, right? But I don't want to do that. What I want to do, I want to create a image. Yes, yes or no? हमको एक कंटेनर इमेज बनाना है. सो डॉकर टूल क्या बोलता है, मैं तुम्हारे लिए कंटेनर इमेज बना दूंगा. तुम एक काम करो, तुम अपना सिस्टम में जाओ, एक फाइल बनाओ, ठीक है. उस फाइल का नाम दो, यही नाम देना है, डॉकर फाइल. नथिंग स्मॉल, नथिंग कैपिटल. इसमें मैंने फाइल का ये कैमल केस नहीं है, डी कैपिटल होना चाहिए, ऐसा एक बनाओ डॉकर, ठीक है. और आप मेरे को बताओ आपको क्या चाहिए. सो लेट्स सी, मेरे को क्या चाहिए. एक जेडीके एप्लीकेशन रन करने के लिए मेरे को एक इमेज, बेस इमेज चाहिए. ये सुन लो, मेरे पास सर्वर है बट मेरे पास कोई इमेज नहीं है, जहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं है क्या? नहीं है. यस, नहीं है, राइट. आई डोंट हैव एनीथिंग. इमेज बनाने के लिए मेरे को तो पूरा पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा. तो मैं उसको बोलूंगा तुम एक काम करो, गिटहब में होगा शायद. लेट्स गो टू द गिटहब. सॉरी, गिटहब नहीं, डॉकर. ओपन जेडीके का देखो तो कुछ है कि नहीं. ओपन जेडीके का डॉकर इमेज शायद है इसके अंदर, ठीक है. ऑफिशियल इमेज है ओपन जेडीके का, ठीक है. क्या बोल रहे हैं, ओपन जेडीके से ओपन सोर्स implementation for Java platform standard edition, right? What is it is having, इसके अंदर सब कुछ है, देख लो. ओके, सो इफ आई यूज दिस ओपन जेडीके, मेरे को ना तो सेंटोस लेना है ना कुछ भी लेना है. उसने बोल दिया कैसे तुम यूज कर सकते हो, हाउ टू स्टार्ट अप एवरीथिंग. आई विल कम इनटू दैट पेज. डोंट ओके, दिस इज द थिंग. अभी मैं डॉकर को बोलूँगा, जस्ट वेट एंड सी व्हाट आई एम गोइंग टू डू. आई एम डॉकर को बोलूँगा भाई तू ओपन जेडीके लेके आ पहले, ठीक है. क्या वर्जन चाहिए ओपन जेडीके का? 8 वर्जन चाहिए, ठीक है. उसके बाद क्या बोलूँगा, मेरे पास जेडीके आ गया. अभी मेरे पास क्या है, सोर्स कोड है, राइट. ये सुन लो,
अभी यहाँ पे एक चीज़ भी क्लियर हो जाएगा सबका कि भाई बोलो, एक एक बात बताओ कि इसका कंपाइल कैसे होता है। मतलब आई थिंक यू आर यूजिंग ए मैविन टूल, बट व्हाट मैविन डज समथिंग, राइट। ऐसा तो नहीं कि खुद हो जाता है कंपाइल। पहले तो आपका जो पॉम डॉट एक्सएमएल है, पॉम डॉट एक्सएमएल में इतना लाइब्रेरी है, इतना लाइब्रेरी यहाँ पे जो भी दो लाइब्रेरी है, ये स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब, इफ आई गो इनसाइड दैट स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब, इट विल हैव मल्टीपल लाइब्रेरीज, राइट। बूट, ये सब जेसन, ये स्टार्टर टॉम कैट, स्प्रिंग बूट स्टार्टर, राइट, स्प्रिंग वेब, ये सब लाइब्रेरीज को कौन लेके आएगा, इसको लेके आना पड़ेगा, राइट। सो आई हैव नाउ आई हैव व्हाट आई एम हैविंग। मैं जैसे बोला था कि पहले मेरे पास ओपन जेडीके है, मतलब जेडीके तक आ गया, जेडीके के बाद अब मेरे को लाइब्रेरी लेके आना है, राइट। सो हु विल हेल्प मी टू ब्रिंग ऑल द लाइब्रेरी, मैविन, राइट। ठीक से देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये फ्रॉम जो बोला मैंने डॉकर को बोला कि तुम्हारा अपना हब से लेके आओगे, राइट। सो डॉकर हब से ओपन जेडीके लेके आया, उसने इम्प्लीमेंट कर दिया। अभी उसके बाद उसको मेरे को ये बोलना है कि तू एक काम कर, पहले वर्क डायरेक्टरी ढूंढ, ठीक है। सो वर्क डायरेक्टरी ढूंढने के बाद वो क्या करेगा, एक मिनट रुक जाओ। या सो उसको उसको मैंने बोला कि तू एक काम कर, राइट, वॉट एवर वी आर डूइंग, जस्ट यूज योर यू नो वर्क डायरेक्टरी, ठीक है। ये जस्ट यू कैन इग्नोर इट एज ऑफ नाउ, बट ठीक है, एक ऐप करके वर्क डायरेक्टरी बनाए। उसको मैंने बोल दिया कि भाई तू ये जो मेरा फाइल स्ट्रक्चर है, यहाँ से तो यहाँ से मैं इमेज बनाऊंगा, इमेज कहाँ से बनूंगा, ये जो फाइल स्ट्रक्चर है इसी के अंदर से मैं इमेज बनाऊंगा। उसको मैंने बोलूँगा कि तू एक काम करना, जब इमेज बनाओगे तब क्या करना, पहले सारे फाइल को कॉपी कर ले। किसका फाइल को कॉपी कर ले, मैविन का, क्योंकि मैविन इज द ओनली थिंग्स हु विल हेल्प मी टू डू द डिपेंडेंसी, you know resolution, right? So what I need to do, I need to use this thing. Just take a look what I'm doing next, all other things, right? So I'll use the copy मेरे को क्या क्या करना है, ये डॉट एम्बियन, क्योंकि डॉट एम्बियन के अंदर क्या है, इफ आई एक्सपेंड इट, दिस इज द मैविन रैपर, इसके अंदर जार है, ये जार एक्चुअली मेरा सारा डिपेंडेंसी को सॉल्व करता है। तो आई नीड टू सेंड इट टू डॉकर ऑल्सो, सो दैट डॉकर विल यू नो यूज दैट, राइट। सो आई नीड टू कॉपी दैट मैविन के अंदर जो भी है टू करंट डायरेक्टरी, करंट डायरेक्टरी इज माई डॉट, डॉकर का जो करंट डायरेक्टरी है, ओके, एमवीएन, ठीक है। उसके बाद मैं ये बोलूँगा कि तू एक काम कर, मैविन वाला कॉपी हो गया, अभी मैविन रैपर वाला कॉपी कर, क्योंकि मैविन रैपर इज द प्रोग्राम, और पॉम डॉट एक्सएमएल को लेके आ, ओके, क्योंकि पॉम डॉट एक्सएमएल में ये लिखा है कि क्या क्या डिपेंडेंसी मेरे को सॉल्व करना है, ओके। डोंट गो टू मच, व्हाट आई एम जस्ट टेलिंग, जस्ट बिलीव ऑन मी। इसमें क्या लिख रहा हूँ ये सब बाद में सब समझ में आएगा। अभी मैंने पहले मैविन को कॉपी किया, फिर पॉम डॉट एक्सएमएल को कॉपी किया। अभी पॉम डॉट एक्सएमएल कॉपी करने के बाद मेरे को डॉकर को बोलना है कि तू एक काम कर, सारे डिपेंडेंसी को पहले लेके आ। सो हु विल हेल्प मी टू bring all the dependency avenue, these are the library I copied, so I need to now run it, right? What I'll do, I'll use the you know mvnw, okay, then I'll tell him कि dependency, and आप offline में जाओ, ठीक है, और मैंने इसको बोल दिया, मैविन को बोल दिया कि तू सारे डिपेंडेंसी को पहले लेके आ, ऑल डिपेंडेंसीज प्रेजेंट इन माई डॉकर, ओके। उसके बाद मैंने बोला कि मेरा जावा कोड एसआरसी फोल्डर में लिखा है, तो कॉपी करो उसको, ठीक है। जावा कोड एसआरसी फोल्डर में लिखा है डॉट एसआरसी, और उसके बाद मेरे को बोलना है कि ये एप्लीकेशन रन होने के लिए, स्टार्ट होने के लिए, राइट, यू नीड टू रन दिस कमांड cmd। क्या क्या कमांड रन करना है, आई विल फर्स्ट रन, एक स्पेस देना है, एक स्पेस देना है, mvnw स्प्रिंग बूट, सॉरी, रन, ठीक है, ओके।
अभी मैं अगर ये सब चीज़ मैंने एक डॉकर फाइल में लिख दिया और डॉकर में अगर डॉकर बिल्ड कर दूंगा, सो इट विल गिव मी द कंटेनर इमेज ऑफ दिस एप्लीकेशन। इसमें क्या क्या है, पहले ओपन जी के ऑलरेडी इसका कंटेनर इमेज कहाँ पे है वो उसको लेके आएगा। फिर मैंने बोला कि तू एक वर्क डायरेक्टरी बना जिसका नाम होगा ऐप। फिर मैंने डॉकर को बोला कि तू एक काम कर, डॉट एम फोल्डर को पहले लेके आ जा, कॉपी करके लेके आ जा, और मैविन्यू कमांड एंड पॉम डॉट एक्सएमएल को लेके आ जा। पॉम डॉट एक्सएमएल में जो भी लिखा है उस हिसाब से तू सारे डिपेंडेंसी फाइल को पहले डाउनलोड कर ले अपने एनवायरनमेंट में। उसके बाद ये सोर्स कोड को भी तू कॉपी कर ले। Then you run this program, cmd program, which is the Mavenue Spring Boot run. Okay, so what it will do, it will bring all the things, right? Also along with this command, right, Spring Boot run, right, it will create the container image. Okay, how it is doing एक दिन में क्लियर नहीं होगा, I am sure, don't go into that, but just think about the understanding what I am trying to do. Okay, everyone is clear? ठीक है, ये डॉकर फाइल मैंने लिख दिया इधर। फिर मैं डॉकर, मेरा सिस्टम में डॉकर रन हो रहा है, दिस इज माई डॉकर ऐप। ओके, अभी मैं क्या करूँगा, ये कहीं से भी चलता है। सो पहले मैं एक काम करूँगा, डॉकर फाइल जहाँ पे है उस लोकेशन में जाऊँगा। सो व्हाट, अभी ये डाउनलोड्स में है, राइट। इनसाइड द डाउनलोड्स आई कैन सी cd java dc। ठीक है, यहाँ पे मैं काम कर सकता हूँ, व्हाट आई नीड टू रन दिस कमांड, आई विल जस्ट राइट डॉकर build, ओके, एंड आई नीड टू गिव, क्या नाम से इसको बनाओ, इसका नाम क्या दो, टैग नाम देना, इमेज का नाम देना है। अगर डॉकर हब में तुम्हारा अपना कुछ रेपोजिटरी है जहाँ पे तुम इसको पुश करना चाहते हो, तो उसके लिए उसका जो यूनिक आइडेंटिफायर है, जैसे गिट लैब का आपका जो गिट हब का जो यूनिक आइडेंटिफायर है, ऐसा कुछ आइडेंटिफायर स्लैश योर इमेज नेम कोलोन आपका वर्सन, इमेज का वर्सन। सो मैं यूज़ करूँगा इधर -0801 और यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं जावा डीसी। ठीक है, और कहाँ से उठाना है सारे डॉकर फाइल, डॉट डॉट मतलब करेंट लोकेशन। ठीक है, इफ यू रन दिस, डॉकर अपना एक इमेज बिल्ड करेगा। ठीक है, ये देखो पहले क्या कर रहे हैं, देखो ठीक से क्या हो गया, कुछ इशू है, मैवेन्यू पॉम डॉट एक्सएमएल क्या बोल रहे हैं, कमांड कुछ गलत दे दिया, कॉपी मैवेन्यू, यस 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 यस, करेक्ट करेक्ट, ठीक है, लेट मी रन इट। ओके, इफ यू कैन सी, पहले ये सारे docker.io से देखो ओपन जीडीके को लेके आया, राइट, उसका इमेज को पहले बनाया, फिर नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हो, राइट। सो इट इज फर्स्ट डाउनलोडिंग एवरीथिंग, राइट, इट विल टेक सम टाइम। इन द मीन टाइम इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, ये थोड़ा टाइम लगेगा, ये बेक्ड हो रहा है, कुछ क्वेश्चन है? बोलो बोलो बोलो। ये मैविन्यू रैपर का ये है कि तुम इस तरीके से भी, हम जैसे मैविन क्लीन इंस्टॉल देते, क्लीन पैकेज देते, राइट, वहाँ पे हम क्या कुछ स्पेसिफिकली बोलते हैं कितना करना है क्या करना है, ये मैं आप, अच्छा ओके, आई गॉट योर पॉइंट। ठीक है, मैं दिखाता हूँ, देखो वेयर इज द टर्मिनल। ओके, got it fine।
हो गया। आप कैसे करते हो? जावा जार करके करते हो, राइट? बट उसमें आपका क्या रहता है, जार रहता है। मेरे पास कुछ जार है, तो मैं मेरे को पहले जावा का जार मेरे को चाहिए ही नहीं, तो मैं जावा जार में जाऊंगा ही नहीं। मेरे को क्या चाहिए, कंटेनर इमेज चाहिए। तो कंटेनर इमेज कैसे बनाना है, मैं पहले क्या किया, पहले ओपन जेडीके लिया। फिर मैंने बोला कि मेरे पास एक टूल है, दैट इज़ द मैविन। मैविन का एक रैपर है, क्योंकि जिस एनवायरनमेंट में जा रहा हूँ वहाँ पे क्या है, वहाँ पे एक सर्वर है। वहाँ पे कुछ नहीं, उसको ना जेडीके पता है ना जावा पता है, कुछ नहीं पता है। तो मैविन क्या करते हैं, मैविन अपना एक रैपर प्रोग्राम देते हैं। कोई एनवायरनमेंट में अगर मैविन इंस्टॉल नहीं है तो आप रैपर विल ऑलवेज गो विथ इट्स ओन जार। जैसे मैंने दिखा है ना, डॉट एम्बियन फाइल के अंदर उसका जार रहता है, मैविन रैपर का जार रहता है। वो पहले क्या करेगा, यहाँ पे वही हो रहा है, देखो कॉपी मैंने डॉट एम्बियन मतलब जार चला गया, यस। उसके बाद मैंने बोला कि जार चला गया, फिर मैंने मैविन न्यू, दिस इज माई बैश सेल। इफ यू कैन सी दिस इज माई बीन बैश सेल। MBNW बैश सेल क्या करते हैं, आपका कोई भी जार या जो भी कंपाइल्ड वर्जन है उसको कम्युनिकेट करता है, ठीक है। ये बैश सेल क्या कर रहा है, इसीलिए डॉकर फाइल में देखो डॉट मैविन्यू, दिस इज द रन टू द बैश सेल। एंड इसमें हमको इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है कि आप डिपेंडेंसी को पहले रिजोल्व करो गो ऑफलाइन में, ठीक है। तो वो क्या किया, उसका काम है, बैश सेल को पता है, डॉट MBNW को पता है कि मेरे को फॉर्म डॉट एक्सएमएल में जो भी डिपेंडेंसी है पहले उसको लेके आता हूँ। सारे एनवायरनमेंट में मेरे पास डिपेंडेंसी लाइब्रेरी कॉपी हो गया, ओके। एंड उसके बाद मैंने क्या किया, कॉफ़ी src.src सारे सोर्स कोड को कॉपी किया। और उसके बाद मैंने मैविन्यू को बोला कि तुम रन हो जाओ। ये दिस इज माई कंटेनर इमेज, ये जाके ये सब स्टेप एक एक रन होगा, एक कंटेनर इमेज बनेगा। और कंटेनर इमेज को मैं रन करूंगा तो ये स्टेप फिर से रन नहीं होगा, उस इमेज का एक समझ लो कि ये सब स्टेप रन होने के बाद जो स्टेटस है दैट इज द इमेज, ओके, ठीक है। अभी इस सेम चीज इफ यू कैन थिंक अबाउट व्हाट आई वाज डिस्क्राइबिंग हियर, द सेम थिंग देखो, मैं क्या बोला था कि आपको क्या क्या चाहिए, सेंटोस चाहिए, सॉरी सेंटोस चाहिए, हियर लिनक्स OS, हाँ सेंटोस चाहिए, जेडीके चाहिए। व्हाट हु इज गिविंग दिस टू इज बीइंग गिवन बाय ओपन जेडीके ये दे रहे हैं, राइट। ये दो लेयर का जो इमेज है वो ओपन जेडीके खुद दे रहे हैं। उसके बाद एप्लीकेशन प्रोग्राम मेरा है। एप्लीकेशन प्रोग्राम के लिए हमको सारे डिपेंडेंसी लाइब्रेरी चाहिए, सारे डिपेंडेंसी लाइब्रेरी मैंने ले लिया। फिर मैंने एप्लीकेशन प्रोग्राम ले लिया, फिर उसको कमांड रन करने के लिए मैंने कमांड दे दिया, राइट। आई मेड दिस इमेज, दिस इज माई कंटेनर इमेज, ठीक है, ओके। देखो ये रन हो रहा है, रन वाला है, सारे डिपेंडेंसी पहले डाउनलोड होगा, फिफ्थ स्टेप में चल रही है। इट विल टेक सम टाइम, डोंट वरी, राइट। चिंता मत करो, डॉकर को हम पूरा डिटेल से जाएंगे समझेंगे, बट बिफोर माइक्रो सर्विस माई थॉट प्रोसेस इज लाइक यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द बेसिक्स ऑफ माइक्रो सर्विस। माइक्रो सर्विस क्यों चाहिए, माइक्रो सर्विस इसीलिए चाहिए क्योंकि माइक्रो सर्विस एंड माइक्रो सर्विस का अगर डेफिनेशन समझना है, माइक्रो सर्विस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इन दैट लेवल, कि माइक्रो सर्विस मतलब इतना इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इतना इंडिपेंडेंट। अब बोलते हैं कि हम लोग बोलते हैं, यू माइट हार्ड अबाउट दिस वर्ड इंडिपेंडेंट, राइट, इट शुड बी इंडिपेंडेंटली रन। व्हाट डू यू मीन बाय इंडिपेंडेंट, डिप्लॉयमेंट इंडिपेंडेंट, क्या इंडिपेंडेंट, किस लेवल ऑफ इंडिपेंडेंसी चाहिए, दिस लेवल ऑफ इंडिपेंडेंसी चाहिए कि आपके पास सर्वर है, नो VM, इट शुड कैरी, इतना इंडिपेंडेंट कि इट शुड कैरी इट्स ओन JDK, इट शुड कैरी इट्स ओन OS image, it should carry all the dependency library, it should carry its run command, it should carry everything. इतना independent होना चाहिए, okay? So when someone assume that कोई भी आप books में पढ़ते हो, you might heard this word, right? Microservice is very independent. आप independently उसको deploy कर सकते हो, independently ये what is the definition of independent? क्या independent है? रिलेट कर पा रहे हो रातुल, समरेश, अंजलि?
right? If I directly give you the understanding of independent, I think you will not able to understand in that level कि what do you mean by independent, कितना independent है, right? If I use the same thing, if you can think of it that मैं VM के ऊपर माइक्रो सर्विस रन करूंगा, then you are not running a micro service. Yes, you are running a micro service. ऐसा मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि you are not running a micro service. You are running a micro service, but the containers is not directly, you actually लोग अभी क्या करते हैं मैं बताता हूँ. बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते हैं, VM के ऊपर कंटेनर बनाते हैं, हार्डवेयर के ऊपर कंटेनर नहीं बनाते, VM के ऊपर. एक VM तुम्हारा दे दिया, VM के ऊपर कंटेनर बनाएगा. ओके, that is also fine, but that is also the similar problem might have, right? If you are building VM above the operating system. अभी देखो ये हो गया, इमेज बन गया, राइट? docker.io, ये मेरा इमेज बन गया. अभी इमेज कहाँ से, अगर मैं क्लियर, अगर मैं इसको लिखूंगा डॉकर इमेजेस, इट विल गिव मी ऑल द इमेज. क्या क्या इमेज है मेरे पास, कौन सा है, -0801 जावा डीसी. ठीक है, ये मेरा इमेज बना. अभी मैं इस इमेज को, अभी मेरे को शेयर करना है किसी के साथ. मेरा आइडिया क्या है, मेरा फंडामेंटल ऐसा है कि मैं एक इमेज को मैं रिपोजिटरी में शेयर करूँ, और दूसरा कोई भी एक रिमोट सर्वर, आई डोंट नो व्हाट इज द सर्वर, आई डोंट नो एनीथिंग, बट आई वांट टू डिप्लॉय माय एप्लीकेशन टू दैट सर्वर. सो इमेज में अगर दे दूंगा तुमको, ये इमेज को आप कहीं पे भी डिप्लॉय कर सकते हो इफ यू हैव द डॉकर टूल इन योर सिस्टम, बिकॉज योर डॉकर टूल नोज कि कहाँ से उठाना है, एंड योर डॉकर टूल नोज उसके अंदर क्या क्या है. एंड यू ऑलरेडी मेंशन एवरीथिंग, राइट? यू दे दिया ओपन जेडीके दे दिया, उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम दे दिया, उसके अंदर सारे डिपेंडेंसी लाइब्रेरी दे दिया, उसके अंदर अब रन कमांड भी दे दिया. लेट्स सी व्हाट आई नीड टू डू. सो डॉकर हब यूज करने, डॉकर हब यूज करने के लिए यू नीड टू फर्स्ट साइन अप फॉर दिस. सो आई टेल एवरीवन कि क्रिएट योर ओन प्रोफाइल इन डॉकर हब. अभी नहीं, बात कर लेना, ठीक है? मेरा पास डॉकर हब का एक प्रोफाइल है, राइट? एंड एक्चुअली व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू यू, राइट? अभी मैं पहले लॉगिन करूँगा, ठीक है? डॉकर लॉगिन, मेरे यूज़र नेम है, यही मेरे यूज़र नेम है 0801, ठीक है? ये पासवर्ड पूछ रहा है, लेट मी गिव माई पासवर्ड, राइट? सो लॉगिन सक्सीडेड. मैं डॉकर में लॉगिन कर दिया. अभी मेरे को डॉकर में क्या करना, गिट पुश जैसा है, सिंपल डॉकर पुश, ठीक है? किसको पुश करना है, -0801/java dc, ठीक है? मैं इमेज को पुश कर रहा हूँ, अभी इमेज पुश होगा. ओके, सो आई थिंक इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम्स. जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे एक 101 MB है, ठीक है? और बहुत सारे वेटिंग भी है. ये सारे ओपन जेडी के जो भी है, माउंटेड फ्रॉम ओपन जेडी के, ये सब चीज़ हो रहा है, राइट? सो ओके, एवरीथिंग इज पुशिंग. नो, इट विल नॉट टेक मच टाइम. ठीक है, देख लेते हैं. 100 ही तो जाना है, तो 20 तो हो गया, चलो आराम से. No, everyone can use it. Docker Hub is made for public. तुम भी कर सकते हो, तुम भी मेरे इमेज को यूज कर सकते हो. Similar to GitHub, yes. I already have it. You can see my Docker Hub account. I already have these two image, Java GPG, Java Docker, ऐसा कुछ इमेज मैंने बनाया था पहले, राइट? अभी मैं इसको पुश करूंगा तो इधर तीसरा दिखेगा, ठीक है? उसके बाद इफ आई क्लिक ऑन दिस, इट विल से दैट ओके, से आपको सिर्फ ये इमेज लेना है तो आपका डॉकर में जाओ. ये तो पुश वाला है, बट
इसमें मैं कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं दिया, ये देखो आप पुल करना चाहते हो ये पुल कर लो, डॉकर पुल जावा 8081, मतलब सॉरी माइनस 0801, उसके बाद जावा डॉकर लेटेस्ट, राइट, दिस इज द लेटेस्ट इज माई वर्जन ऑफ द जावा डॉकर। ठीक है, ये पुल करोगे तो आपका सिस्टम में ये एप्लीकेशन आ जाएगा। ओके, पब्लिक है, बाय डिफॉल्ट पब्लिक है। हो गया, पुश हो गया, क्या बात है। लेट्स सी इन माय जावा क्या है ये। ओके, जावा डीसी आ गया, अपडेट ए फ्यू सेकंड एगो आ गया। अभी मेरे को इसको क्या करना है, मैं कोई रिमोट लोकेशन में जाता हूँ कोई भी सर्वर में, सिर्फ वहाँ पे डॉकर टूल होना चाहिए। आई जस्ट डॉकर क्या करते हैं, आपको खेलने के लिए एक सर्वर देता है, कभी कभी 4 घंटे के लिए आपको सर्वर देता है। सो इफ यू वांट टू प्ले विद डॉकर यू कैन प्ले, राइट। मैं दिखाता हूँ कैसे मज़ा आ जाएगा। अभी देखो ये क्या है ना, 4 घंटा एलोकेट कर दिया आपको एक सर्वर के लिए। ओके, एक लैब्स दे दिया, आप एक नया इंस्टेंस बना सकते हो। इफ आई क्रिएट अ न्यू इंस्टेंस इट इज़ बीइंग क्रिएटेड। ठीक है, 192.168.0.8 करके आपको एक सर्वर दे दिया। अच्छा, यहाँ पे जावा है, देख लेते हैं जावा वर्जन, ऐसे देखते हैं तो क्या देख कैसे देखते हैं, नो कमांड है। ओके ग्रेट है, डॉकर है, देख लेते हैं ना, डॉकर है, सिर्फ डॉकर है और कुछ नहीं है, राइट। व्हाट आई नीड टू डू, I need to pull that image whatever I pushed. Yes, how will pull, docker pull 0801 slash java dc. If I don't give anything it will by default take the latest, but अभी latest ही दे देते हैं। पुल हो रहे देखो सारे, हो गया पुल, क्या बात है। डॉकर इमेजेस आ गया मेरा -0801 जावा डीसी, अभी इमेज आईडी ये सब बन गया। अभी मेरे को क्या करना है, इसको रन करना है, इधर करूँ ना, डॉकर क्लियर करते हैं। मैं अभी जो कमांड चलाऊंगा उसमें बहुत कुछ मैं कन्वे करने का ट्राई करूंगा, बट जस्ट गेट द कोर आइडिया, डोंट गो इनटू द कमांड इंस्टेंस। ओके, डॉकर रन, ठीक है। मैं डिटैच मोड में चलना चाहता हूँ, डिटैच मोड मतलब कि बैकग्राउंड में सर्वर चलेगा, ऐसा नहीं कि ये मेरा जो टर्मिनल है इसको होल्ड करके रखेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। एंड आई विल से कि मेरा रिक्वेस्ट मतलब जो भी जाएगा ये 8080 पोर्ट में जाएगा, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट जो स्प्रिंग बूट है कौन सा पोर्ट में रन होता है, 8080 में रन होता है, राइट। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि मेरा जो कंटेनर बनेगा, ये कंटेनर ये जो मेरा सर्वर के ऊपर बनेगा, सो मैं बोल रहा हूँ कि सर्वर का जो 8080 पोर्ट है उसको आप कंटेनर का 8080 पोर्ट में राउट कर दो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ऐसा नहीं कि आपका पोर्ट सेम होता है। आई विल गो इनटू डिटेल्स व्हेन आई गो टू डॉकर, बट हाई लेवल पे समझ लो कि आपका जो कंटेनर है, कंटेनर इज अनदर सर्वर टाइप ऑफ थिंग, वर्चुअल सर्वर। तो दोनों का पोर्ट से हमको मैपिंग करना पड़ता है। सो -p 8080 colon 8080 is that mapping, then I will give the name of this, right। Sorry, java dc, ठीक है, रन करूँ, हो गया रन। ओके, मैं कैसे देखूँ रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, डॉकर लॉग्स, ठीक है। बट मेरे को पहले ये जानना है कि ये जो जावा डीसी का मैंने रन किया, इसका तो इंस्टेंस बना, उसका कुछ नाम है क्या, उसका एक नाम होता है, मैंने कुछ नाम तो नहीं दिया। तो डॉकर क्या करते हैं, बाय डिफॉल्ट नाम देते हैं उस इंस्टेंस का, ठीक है, कि ये इंस्टेंस, क्योंकि मल्टीपल इंस्टेंस यू विल रन, सबका तो जावा डीसी नाम नहीं होगा।
So if you go to the Docker PS, it will give you one name. ये देखो tracked German. This is the, इसने बहुत अच्छा नाम दे देते हैं नेम. ठीक है, मैं अभी ये देख सकता हूँ. क्या देख सकता हूँ मैं? Docker logs. Okay, no such container. अच्छा distracted. Oh sorry, distracted German. चल रहा है तुम्हारा एप्लीकेशन? यहाँ पे जावा था, यहाँ पे सिर्फ सर्वर था एक, राइट? इसको पता भी नहीं तुम क्या करने वाले थे. इसको मैनुअली मैं कैसे एक्सेस करूँ? इसका एक होस्ट बनता है, 8080 क्लिक करूँगा, सो ये एक्चुअली डोमेन नेम बनाता है. ठीक है, अभी ये कुछ नहीं दे रहा है क्योंकि इसमें मेरा, कहाँ पे मैं इसको दिखा रहा हूँ, API/v1. लेट्स सी व्हाट इट रिटर्न. हेलो फ्रॉम जावा DC. आ गया? Anyone of you just type this in your browser and let me know if you are not see or not, if you are able to see or not. Everyone? कितना टाइम लगा एक सर्वर को? सिर्फ आप हमको क्या चाहिए, एक बेयर मेटल सर्वर चाहिए. हाउ मच टाइम required to do the development, to make the image, to push to the repository, right? देखो, बेयर मेटल सर्वर था, मेरा VM था. VM में भी प्रॉब्लम था क्योंकि VM में मेरे को सारे लिनक्स सेंटोस JDK इंस्टॉल करना पड़ता था. मैंने कंटेनर में क्या किया, इस सब को एक साथ डाल के एप्लीकेशन प्रोग्राम को बना के कंटेनर इमेज बना दिया. दैट कंटेनर इमेज कैन हैव एवरीथिंग. Okay, and I can port that container image to, I can email you. This is a simple zip file. Container image nothing but I can create the zip file and I can email you that container image. Okay, or I can share it via some registry, and from that registry any server, go to any server, it just need the docker tool. Okay, अगर वहाँ पे docker tool है तो हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. Now coming to your point, division, how we are using. ठीक है, मैं frankly speaking, right, Paycraft and any organization, they are actually acquiring this server. जैसे मैंने सर्वर लिया और उसके ऊपर उन लोगों ने VM डालता है, मतलब एक सर्वर ले लिया और उसके ऊपर वो लोग VM बनाता है, फिर वो VM के ऊपर ये लोग JDK लिनक्स सब इंस्टॉल करते हैं, राइट? योर ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट यूजिंग द डॉकर एज कंटेनर. ठीक है, मैंने ट्राई किया था स्टार्ट करने के लिए बट हुआ नहीं. लिव इट, दैट्स अनदर डिस्कशन. बट दिस इज द आइडिया, right, behind the containerization, the dockerization or the image. ठीक है, नहीं, CPU रैम इज अ हार्डवेयर लेवल, राइट? मैंने क्या बोला, इधर देखो, ये तो है ही, तुम CPU प्रोग्राम के अंदर CPU रैम नहीं देने का जरूरी है. ठीक है, प्रोग्राम के अंदर वो तो आपको लेना ही पड़ेगा. तो व्हाट दे विल डू, दे विल गिव यू द हाइपरवाइजर. ठीक है, अभी Amazon वेब सर्विस समझ लो, पकड़ लो, ये कोई भी एक, लेट्स गो बैक टू माय, यू नो
presentation. So you will get lots of image. This is the Docker image, Kubernetes image, Spring Cloud, AWS. AWS पकड़ लो. ये पिक्चर को थोड़ा बड़ा करते थे, नहीं विल अंडरस्टैंड. ये पिक्चर को ढंग से देखो क्या है. आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, right? यहाँ पे क्या था, इंफ्रास्ट्रक्चर था, हाइपरवाइजर था, उसके ऊपर आपका गेस्ट ओएस है, फिर लाइब्रेरीज है, फिर आपका एप्लीकेशन है, राइट. ठीक है, ये सब छोटा छोटा वीएम है. ये जो गेस्ट ओएस है, ये सब छोटा छोटा वीएम, आपका एप्लीकेशन इधर था. ओके. अभी इधर देखो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके ऊपर कंटेनर इंजन है. जो कंटेनर इंजन, और यहाँ पे आपका ऐप वन बीनलैब जो भी है, तो इसमें ही आप सब कुछ ओएस वाला चीज़ भी रखते हो. ओके, दीज आर द कंटेनर. यू कैन से दीज आर द कंटेनर. आपका क्वेश्चन ये है कि हमको क्या करना है, हमको इंफ्रास्ट्रक्चर तो चाहिए, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम. हम किस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, दैट इज यू नीड टू डिफाइन इन द हार्डवेयर लेवल. और ये क्या करते हैं, अमेजोन एडब्ल्यूएस क्या करता है, आपका नोड्स बना के देता है, मल्टीपल सर्वर आपको डिफरेंट रीजन में बना के देता है. और या तो उसका हाइपरवाइजर रहेगा, या आप खुद हाइपरवाइजर डालो, या आप उसके ऊपर वीएम डालो, आपको जो भी चाहिए. नॉर्मली if you tell them कि मेरे को ये कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, they will configure your server, and they will not put anything. They will just put the base Linux जो भी है, बेस जो हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको यूज करेंगे. ओके, अभी आवाज आ रहा है. ओके, एबल टू अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक. सो अभी ये जो टॉपिक है, मैं जो चाह रहा था कि वी शुड नो, इट इज, लेट मी टेक ए लुक दैट एवरीथिंग आई कवर्ड और नॉट. ठीक है. So first one was what, bare metal server, VMs and containers. Everyone is clear? हाइपरवाइजर क्लियर है? ज़्यादा कुछ पढ़ सकते हो हाइपरवाइजर, बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाइपरवाइजर जो हेल्प करता है वर्चुअलाइजेशन में, राइट. बेस ओएस पता है? यस. व्हाट इज द बेस ओएस हियर? सेंटोस, सॉरी, लिनक्स बेस ओएस, राइट. आईएसओ इमेज, यस. कंटेनर इमेज, OS based image, daemon based image. Actually these are the OS based container image, daemon based container image. उसके बाद क्या है, इमेज रजिस्ट्री, डॉकर हब, राइट. इमेज क्रिएशन, जावा से कैसे इमेज क्रिएट किया है आपने, डॉकर फाइल, यूजिंग डॉकर फाइल. एंड इमेज रन, हाउ आई रनिंग द इमेज. ओके, हो गया. ओके, that's what today's target was, to give you a understanding of this thing, right. Okay, next tomorrow onwards we will start the basic fundamental of the things, right. But I'm using this word, right, microservices, more than writing the code, right. Keep that in your mind every times, right. Don't think that someone is giving you some, right, ये service ऐसे लिखो, जो भी अब लिखो, application will come later, the last phase, right. First of all, you need to understand how you will make sure कि your application is independent to everyone, independent in that sense of the server layer, not your application layer. ठीक है. Okay, now what we are going to do, I'll just give you a glimpse, right, so everyone will understand that what is that microservice architecture, right. So basically, first of all, you will understand, try to understand uh, each and every keyword of it in the microservice, right. How we can send a small independent service, distributed in nature, single well defined responsibility, loosely coupled, decoupled, resilient, scalable, right. What are the patterns? So when I talk about the pattern, it is like that, you know, बहुत सारे और पैटर्न है. तो क्या पैटर्न यूज करते हैं, ये कोई डिजाइन पैटर्न है कि क्या है, इट इज नॉट ए डिजाइन पैटर्न, इट इज आर्किटेक्चरल पैटर्न. ठीक है. फिर हर एक पैटर्न को हम डिटेल में एनालाइज करेंगे. डेवलपमेंट पैटर्न क्या होता है, कैसे आपको स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट को डेवलप करना है, सो आई कैन से दैट इट इज ए कंप्लीट माइक्रो सर्विस, राइट. फिर हम कैसे राउट करेंगे मल्टीपल नोड को. फिर हम क्लाइंट रेजोल्यूशन पैटर्न क्या यूज़ करेंगे. फिर हम क्या सिक्योरिटी पैटर्न यूज़ करेंगे.
ये सिक्योरिटी पैटर्न से याद आए, एवरी मतलब मोस्ट ऑफ यू नो कैन एबल टू अंडरस्टैंड दिस पिक्चर राइट. Auth 2, authorization server, credential management, authentication. सेम चीज़ हम इधर इम्प्लीमेंट करेंगे. Logging tracing pattern, we will go into details, right? How to do the things, right? This is the all pattern we are going to use, right? And then we will go into the basic details कि भाई कोड डेवलपमेंट पैटर्न मतलब कैसे आप देखते हो एक सिस्टम को, right? And lots of things will be very interesting if you guys attend all the session. Just try to make it, else it will be available in YouTube and everywhere, right? I'll just stop recording. I just want to